طرف سے تمام ناظرین سامعین کو بہت بہت سلام۔ ناظرین بتاتا چلوں کہ ہمارا یہ سلسلہ کرسچن اسکٹالوجی مسیحی علم الآخرت، جس میں ہم آخری زمانے کے تعلق سے سیکھتے ہیں، کتاب مقدس کے اندر بہت سارے ابواب، آیات، حوالہ جات، الفاظ اور کتابیں بھی موجود ہیں جو آخری زمانے سے پردہ ہٹاتی ہیں، لیکن فی الوقت ہم نے مکاشفہ کی کتاب کو منتخب کیا ہے تاکہ ہم آخری زمانے کے تعلق سے سیکھ سکیں۔ اب تک خداوند کے فضل سے ہم مکاشفہ کی کتاب اس کے 30 باب کی 10ویں آیت مقدسہ تک بڑی تفصیل کے ساتھ سیکھ چکے ہیں، اور ان 2 ابواب کے اندر ہم ان 7 کلیسیوں کا ذکر پڑھتے ہیں جو کسی زمانہ میں ایشیا کوچک میں موجود تھی، جو آج ترکی ہے۔ علماء کے مطابق اس جگہ پر بہت ساری کلیسیاں تھیں، لیکن 7 کلیسیوں کو نمائندگی دی گئی، اور یسوع مسیح نے یوحنا کی معرفت ان 7 کلیسیوں کے نام 7 خطوط ان کے پاسبانوں کو بھیجے، جو ہم فرشتہ پڑھتے ہیں کہ سردیس کے فرشتے کو یہ لکھ، تو فرشتے سے مراد خدا کا خادم ہے۔ اور یسوع مسیح نے ان 7 کلیسیوں کا جائزہ لیا، جیسا کہ مکاشفہ کی کتاب کے پہلے باب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدم ذات سا سونے کے 7 چراغدانوں میں پھرتا ہے۔ تو سونے کے 7 چراغدان جو ہیں وہ کلیسیا ہے، اور وہ جو آدم ذات سا ہے وہ یسوع مسیح ہے۔ تو یسوع مسیح ہر کلیسیا کی جو صورتحال ہے اس کا جائزہ لیتا ہے، اور پھر ان کی ساری صورتحال ان پر عیاں کی جاتی ہے۔ ان میں سے بہت ساری کلیسیوں کو تنبیہ کی جاتی ہے، مشورہ دیا جاتا ہے، توبہ کرنے کے لیے انہیں ابھارا جاتا ہے، اور کچھ چھوڑنے کے لیے، کچھ اپنانے کے لیے انہیں اصلاح دی جاتی ہے۔ تو اب تک خداوند کے فضل سے ہم بڑی تفصیل کے ساتھ 5 کلیسیوں کے تعلق سے سیکھ چکے ہیں، اور اب ہم 6ٹھی کلیسیا کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں، یعنی فلدلفیا کی کلیسیا کے تعلق سے۔ آج پھر میں آپ کے لیے مکاشفہ کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 11ویں آیت مقدسہ تلاوت کروں گا۔ لکھا ہے، میں جلد آنے والا ہوں، جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ، تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے۔ آئیے دعا مانگیں۔ قادر مطلق خدا، مجھے اس لائق بنا تاکہ میں تیرے کلام کو بیان کر سکوں، اور تمام سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے دعا کرتا ہوں یسوع مسیح ناصری کے نام کے سبب سے کسی قسم کی کوئی پریشانی، ڈپریشن، خوف، دہشت وحشت ہے تو یسوع کے قدوس نام کے سبب سے چلی جائے، تاکہ تیرے لوگ آزادانہ تیرے کلام کو سنیں اور برکت پائیں، مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ ناظرین، میں پھر آپ کے لیے اس حوالے کو پڑھنا چاہتا ہوں، یعنی مکاشفہ 3 باب اس کی 11ویں آیت مقدسہ، اور پھر ہم اس آیت کے تعلق سے آج پھر سیکھیں گے۔ میں جلد آنے والا ہوں، جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ، تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے۔ تو سابقہ پیغام میں بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کی۔ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو فلدلفیا کی کلیسیا کو تھامے رکھنا ہے؟ اور لکھا ہے، کوئی تیرا تاج نہ چھین لے۔ تو یاد رکھیے، یہ ایک انتباہ ہے، ایک سابقہ اطلاع ہے۔ خداوند کے فضل سے فلدلفیا کی کلیسیا جو ہے وہ ایک اچھی کلیسیا ہے، راست باز لوگ ہیں۔ اتنا ہی کہنا کافی ہوگا کہ یسوع مسیح کو اس کلیسیا سے کوئی شکایت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تعریفی الفاظ ہم شروع میں پڑھتے ہیں۔ کامل تو نہیں، لیکن ان میں کوئی ایسی خامی، خلا یا خطا بھی نہیں جس کے سبب سے یسوع مسیح ان کو تنبیہ کرتے، سرنجش کرتے، ڈانٹتے ڈپتے،
ताहम कोई कितना मर्जी मजबूत हो, बाहसियत इंसान ये खदशा हमेशा लाहक रहता है कि कहीं हम गिर ना जाएं। हमारे पास न्यू टेस्टमेंट में, नए अहदनामा में कोई 21 खतूत हैं। इन खतूत के अंदर उन तमाम ईमानदारों को मुख्तलिफ हवाला जात में मुख्तलिफ अंदाज में मुखातब किया गया है और हर ईमानदार को मतले किया गया है कि जब वो रास्तबाजी की ज़िंदगी बसर कर रहा है तो उसे कैसे कायम रहना है। पौलुस ने अपने खतूत में बार बार ये कहा, ख़बरदार जो तुम्हें कायम है वो ध्यान से चले, मजबूत रहे, कहीं गिर ना जाए। तो यहाँ पर फिलदेल्फिया की कलीसिया के मेंबरान के लिए, इस कलीसिया के लिए यीशु मसीह की एक एडवांस इंतबाह है कि दीगर 4 कलीसियाओं से वो मुख्तलिफ है। यानी स्मरना और फिलदेल्फिया 2 कलीसिया ऐसी हैं जो अपने मौक़ों पर कायम थी और जिनसे यीशु मसीह को कोई शिकायत नहीं है, लेकिन दीगर कलीसियाओं में गिरावट आ चुकी थी, गुनाह आ चुके थे। तो यीशु मसीह फिलदेल्फिया की कलीसिया को इंतबाह देते हैं कि वो कायम रहे और मजबूत रहे, और जिस तरह वो दूसरी कलीसियाओं से मुतफरिक है, उनके ईमान की बुनियाद मजबूत है, चाल चलन नेक और पाक है, रास्तकारी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो उन्हें इस पे कायम रहना है। और यीशु मसीह ने यहाँ पर एक और बात कही है, कोई तेरा ताज ना छीन ले। तो मैंने बड़ी तफसील के साथ सबका पैगाम में आपको ये बताया, उसके लिए मैंने कुछ हवाले भी आपके सामने रखे और एक ऐसी शख्सियत के ताल्लुक़ से बताया जो आज शैतान, इब्लीस, पुराना शाम कहलाता है। उसकी सारी मैंने जो बायोग्राफ़ी है वो मैंने बताई। आज मैं थोड़ा सा उसके ताल्लुक़ से बताना चाहता हूँ। तो किताब मुक़द्दस के अंदर बेशुमार हवाला जात हैं जो लूसीफर की सरगुज़श्त बताते हैं, कहानी बताते हैं। वो हमेशा इब्लीस नहीं था, शैतान नहीं था, सांप नहीं था, पुराना सांप नहीं था। किसी ज़माने में वो सुबह का रोशन सितारा था। यशायाह के सहीफे के 14वें बाब के 12वीं आयत से लेकर 15वीं आयत में उसे सुबह का रोशन सितारा कहा गया है। हिजकिय्याह की किताब उसके 28वें बाब की 11वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक उसके हुस्न की, इख्तियारात की, उसकी अज़मत की तारीफ़ की गई है और उसकी सरफराजी का जिक्र किया गया है। तो यूँ मालूम होता है कि शुरू में वो ऐसा नहीं था, कोई ऐसा वक्त था जब वो बागे खुदा में चला करता था, सुबह को रोशन सितारा था, दीगर फरिश्तों की तरह जिनमें मुकर्रर फरिश्ता जबराइल, मिकाइल, सराफीम, क्रोबीम, दीगर फरिश्तों की तरह वो भी इज़्ज़त माब था, बल्कि वो सबसे ज़्यादा इज़्ज़त माब था। दीगर फरिश्ते भी उसकी इज़्ज़त करते थे। तो मालूम होता है कि किसी ज़माने में वो जब गिरावट से पाक था तो एक आला उम्दा ताज यानी इख्तियार उसके पास था। दीगर फरिश्तों की निस्बत उसके पास ज़्यादा इख्तियारात थे। जैसे कि आज हम लफ्ज़ जनरल इस्तेमाल करते हैं, यानी वो जनरल की तरह था और दीगर फरिश्ते उसके मताद थे, उसकी बात मानते थे, इज़्ज़त करते थे। यीशु मसीह ने जो फिलदेल्फिया की कलीसिया को एक इशारा दिया, कोई तेरा ताज ना छीन ले। तो कभी कभी ऐसी मुदाखलत हो जाती है जिससे वो ताज छिन जाता है, गिर जाता है, खो जाता है। तो हिजकिय्याह के सहीफे में 28वें बाब में एक इशारा दिया गया है कि जब वो कामिल था, चाल चलन दुरुस्त था, पाकीज़ा था, पारसा था, तोहरा था, खुदा का पसंदीदा था और वही काम करता था जो खुदा की निगाह में पाक थे। एक वक्त आया कि उसकी तारीफ़ें की गई, उसके साथी फरिश्तों ने उसको सराहा। कलाम में लिखा है, उन्होंने तुझ में गुनाह भर दिया, उसकी तारीफ़ की गई। ये घड़ी आजमाइश की घड़ी थी, उसका टेस्ट हो रहा था, लेकिन वो फूल गया, उसमें घुमंड समा गया। यशायाह नबी कहते हैं कि तुझ में घुमंड समा गया और तूने कहा मैं अपना तख्त खुदा से बड़ा बनाऊंगा। तो
इसी आजमाइश के कारण, इसी आजमाइश की वजह से वो वक्त आया जब वो ताज छिन गया और वो ख़ास फरिश्ते से एक इब्लीस, शैतान और सांप बन गया। और उसका वक़ार इतना भी ना रहा कि जब उसे कैद में डाला जाए तो कोई ख़ास फरिश्ता है। मुकाशफा की किताब के 20वें बाब की पहली 3 आयत हम पढ़ेंगे। लिखा है, फिर मैंने एक फरिश्ते को आसमान से उतरते देखा जिसके हाथ में अथाह गढ़े की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। यूहन्ना कहता है फिर मैंने एक फरिश्ते को, यानी यहाँ पर सराफीम नहीं है, क्रोबीम नहीं है, मिकाइल नहीं है, जब्राइल नहीं है, मुकर्रब नहीं है, बल्कि एक कामन आम फरिश्ता है। और वो भी खाली हाथ नहीं है, उसके हाथ में एक कुंजी है और एक जंजीर है। और उसने उस अयधा यानी पुराने सांप को जो इब्लीस और शैतान है पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांधा और उसे अथाह गड्ढे में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी ताकि वो 1000 वर्ष के पूरे होने तक कौमों को फिर गुमराह न करे। इसके बाद ज़रूर है कि थोड़े अरसा के लिए खोला जाए। तो यहाँ पर जो इसके नाम है अय्दहा, पुराना सांप, इब्लीस और शैतान। तो याद रखिए कि लूसीफर बाद में अय्दहा, पुराना सांप, इब्लीस और शैतान बन गया, क्योंकि वो ताज जो इज़्ज़त, वकार और खुदा की तरफ से एक अनायत शुदा तोहफा था, उसको वो बरकरार ना रख सका। मैंने बताया था कि ताज से मुराद कोई लोहा, पितल, सोना, चांदी, हीरे का टुकड़ा नहीं, बल्कि खुदा की तरफ से वो इज़ाज़ है, वो इज़्ज़त है, वो म्यार है, वकार है, वैल्यू है, जो खुदा किसी पर तरस खा के, रहम करके अपने फजल की दौलत के मुताबिक अता करता है। लेकिन शायद ये फरिश्ता तारीफ़ों के झांसे में आ गया और ख़ुद को गैर मखलूक समझने लगा। उसने ये तस्वर किया कि मैं तो मखलूक नहीं हूँ, मैं भी खुदा के बेटे की तरह हूँ। और हम देखते हैं कि वो आसमान से अथाह गड्ढे में चला गया। तो यीशु मसीह इंतबा देते हैं फिलदेल्फिया की कलीसिया को, आज तो कायम है, तेरे पास तेरा ताज है। हालांकि अगर हम कलीसिया का बारीक मिनट से मुताला करें तो उनके पास कोई लोहे, पीतल, लकड़, सोने, चांदी, हीरे का कोई ताज नहीं था। पाकीज़गी का ताज था, रास्तबाजी का ताज था, खुदा की मोहब्बत का ताज था, सच्चाई की वैल्यू उनके पास थी और खुदा उनसे खुश था, रूह कुदस उनसे खुश था, यीशु मसीह उनसे खुश था। सो यही ताज उनकी पाकीज़गी, रास्तबाजी, रास्तकारी का मुंह बोलता सबूत था। और यीशु मसीह चाहता है कि ताज इसे छिने नहीं और कोई दूसरा मुदाखलत करके इनको इनकी रूहानी ज़िंदगी से कि इस दौड़ से बाहर ना कर दे। सो हम देखते हैं किताब मुकद्दस के अंदर और भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोग अपना ताज खो गए। जो ताज उन्हें मिला हुआ था, किसी दूसरे ने मुदाखलत कर दी और वो उस झांसे में, उस आजमाइश में गिर गए। हकीकतन आजमाइश किसी न किसी दूसरे के वसीले से आती है और जो उस आजमाइश में कायम रहता है उसका ताज बरकरार रहता है, लेकिन जो खो देता है वो बाद में पछताता है, जबकि बाद में पछताने का शायद इतना फ़ायदा नहीं होता। तो मुझे दूसरी शख्सियत नज़र आती है पैदाइश की किताब के 30वें बाब के अंदर, वो है आदम। और हम में से कौन नहीं जानता कि खुदा ताला ने आदम को अपनी सारी तख्लीक पर इख्तियार बख्शा और उसको इख्तियार का ताज अता किया। कलाम में लिखा है खुदा ने जो कुछ पैदा किया उन सब पर खुदा ने आदम को जो है अपना हाकिम मुकर्रर किया कि तू इन पर हुकूमत कर। और ये छोटा वकार नहीं है, ये बड़ी इज्जत है, ये बड़ा मकाम है कि वो खुदा की पैदा करदा तमाम चीज़ों पर इख्तियार रखे। और हम जानते हैं कि खुदा ने उसे एक तरह से अपना असिस्टेंट बनाया। खुदा ने कहा कि तू मेरी तमाम पैदावार के ऊपर इख्तियार रख। हम जानते हैं वो ज़मीन पर हाकिम बना। हम जानते हैं वो खुदा की सूरत पर था। यही उसके ताज थे। ये इज़्ज़त, ये वकार, ये म्यार, ये इज़्ज़त, ये बरकत खुदा की तरफ से हासिल थी। वो बिला खौफ ख़तर सारी खुदा की तख्लीक के अंदर
जहाँ भी जाता फिरता हर चीज़ उसके ताबे थी, हर जानवर उसके ताबे था, तमाम मौजूदात उसके ताबे थी, हर चीज़ गोया उसका हुक्म मानने को तैयार थी। और ये उसके पास बड़ा इख्तियार था, ना खौफ था, ना दहशत थी, ना वहशत थी, ना बीमारियां थी, ना दर्द थे, ना आंसू था, ना रोना था, ना पीटना था। और वो एक खूबसूरत ज़िंदगी बसर करता था और एक खुदा का अनमोल तोहफा था। लेकिन हम जानते हैं पैदाइश की किताब के 3 बाब के मुताबिक वो ये ताज, इख्तियार का ताज, खुदा का नाइब होने का ताज, सारी ज़मीन पर इख्तियार रखने का ताज, और खुदा की सूरत पर जो पैदा किया था, ये ताज कायम ना रख सका। और उसकी अपनी साथी, अपने जोरों ने उसके लिए एक बड़ी आजमाइश खड़ी कर दी। उसे इस आजमाइश पर गालिब आना था। जब आदम खुदा का पसंदीदा था, खुदा का मंजूरी नज़र था, इसी असना में हवा ने उसे फल खाने की पेशकश की। उसको चाहिए था खुदा पर इत्तिकाद करता, यकीन करता, ईमान रखता कि जिसने मेरी पसली से पहले मुझे साथी दिया है वो दूसरा भी दे सकता है, वो मेरे लिए साथी पैदा कर सकता है, कम अज़ कम खुदा को रास्ता ज़रूर निकालेगा। लेकिन वो गिर गया और आज जिस तबाही बर्बादी का आदम शिकार है, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। सो हवा ने, यानी यीशु कहते हैं फिलदल्फिया कलीसिया, कोई तेरा ताज ना छीन ले, तो आदम का जो कोई है वो उसका साथी था और वो ताज उससे छिन गया, वो कायम ना रख सका, वो इख्तियार जाता रहा और सारी मखलूक़ात गुनाह के मतात हो गई और कराहती है, चिल्लाती है, पीटती है। आज दर्द, आंसू, खून, बर्बादी, तबाही, तहस नहस, गुर्बतें, लाचारियाँ, सब कुछ ये उसी गुनाह की पैदावार है। सो आदम अपना ताज बरकरार ना रख सका, ज़िंदगी बरकरार ना रख सका, मौत दुनिया में वारद हो गई। और फिर किताब मुक़द्दस में मुझे और भी कुछ लोग नज़र आते हैं जिनको खुदा ने बड़ा ताज बख्शा। आदम के पास इख्तियार का ताज था। और एक कहानी जिस पर अब तक बहुत सारी फिल्म भी बन चुकी हैं, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इससे मुराद मेरी जो है वो शमसून है। जब हम किताब मुक़द्दस में खुज़ात की किताब उसके 14वें बाब से लेकर 16वें अबवाब तक पढ़ते हैं तो हमें एक सुपरमैन दिखाई देता है जो कि सुपर नेचुरल पावर्स के तहत, क़ुव्वत के तहत अजीम कारनामे इस तरह अंजाम देता है। वक्त नहीं कि मैं सारी बातें डिटेल के साथ बयान करूं। आप सब जानते हैं, शमसून के ताल्लुक़ से हम बखूबी जानते हैं कि खुदा ताला ने उसे क़ुव्वत का वो आला इख्तियार दिया था कि हज़ारों इंसानों की ताकत एक ही इंसान में खुदा ने जो है वो भर दी थी, फिट कर दी थी। और वो बनी इसराइल का सूरमा था ताकि फ़लस्तीनियों से और दीगर कौमों से लड़े और गलबा हासिल करे। और यूँ उसके पास एक ताज था, क़ुव्वत का ताज, ताकत का ताज, इख्तियार का ताज, खुदा की बरकत, खुदा की बख्शिश, खुदा की इनायतमंदी और खुदा का बचाने वाला, छुड़ाने वाला, रहाई देने वाला फजल शमसून के साथ था। और हम जानते वो कहानियाँ जो आज भी इंसानी सोच और ख्याल से कितनी बालातर हैं। कोई इंसान सोच भी नहीं सकता कि कभी एक इंसान एक दरिंदे का सामना करे, शेर का सामना करे और उसे चंद लम्हों में उसे ढेर कर दे। तो शमसून के वसीले से खुदा ने ऐसा किया। जब एक शेर ने शमसून का सामना किया तो शिकस्त शमसून ने नहीं, शेर ने खाई। और हम जानते हैं खुज़ात की किताब का ये मशहूर वाक़या है कि जब फ़लस्तीनियों के साथ उसकी जंग जारी थी तो उसे मारने के लिए एक बड़ी फ़ौज ढूंढने के लिए आई। जब शमसून को उन्होंने पकड़ लिया, मारना चाहा, तो खुदा का कलाम ये बताता है खुज़ात की किताब के अंदर, जैसे मैंने बताया 14वें बाब से लेकर 16वें बाब तक ये सारी कहानियाँ वहाँ पे दर्ज हैं। शमसून के हाथ में एक जबड़ा, गधे का एक जबड़ा आया। तो ये तस्वर करना ही नामुमकिन सा लगता है कि उसने कैसे शुरू किया, पहले किसको मारा, दूसरा आदमी कैसे मारा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 1000 आदमी को किस तरतीब से उसने मारा होगा। लेकिन हम सिर्फ इतना ज़रूर जानते हैं कि उसने गधे के जबड़े के साथ 1000 आदमियों को ढेर कर दिया। और
ये कुव्वत का सरचश्मा, बेपनाह कुव्वत जो किसी के कंट्रोल में नहीं आ सकती, उसके अंदर मौजन थी। दरियाओं की तरह कुव्वत उसके रगो रेशे में बहती थी। और चारों अतराफ तसव्वुर कीजिए कि जब चारों तरफ उसका नाम फैल गया और उस फौजें उससे खौफजदा होने लगी। हम तसव्वुर कर सकते हैं कि कौमों की फ़ौजों के अंदर खौफ छा गया होगा, कहाँ एक आदमी और कहाँ फ़ौजें, दहशत लोगों पर छा गई। लेकिन हम इसी सूरमे को देखते हैं, एक वक्त ऐसा आता है कि जब एक बंद कोठरी में पड़ा हुआ है, इसके पाँव में बेड़ियाँ हैं, हाथों में हथकड़ियाँ हैं, आंखें निकाल दी गई हैं और जानवरों की तरह से बांधा हुआ है, और ये किसी एक इंसान को भी मारने के काबिल नहीं है। तो क्या हुआ? किताब मुक़द्दस बताती है कि स्वर्ग की एक वादी थी जिसमें गया और दलैला नामी औरत से इसे इश्क हो गया और वहीं से इसका ज़वाल शुरू हो गया। और वो वक्त आया जब इसके बाल भी काट दिए गए, जो खुदा ताला के हुक्म के मुताबिक इसकी पैदाइश की रोज़ ही से रखे गए थे। बाल भी काटे गए, कुव्वत भी जाती रही और ये बिल्कुल गुलामों की तरह अंधा होकर जो है वो चक्की पीसने पर मजबूर हो गया। तो इसकी गिरावट का सबब, इसकी तबाही का सबब तो दलैला ने गोया इसके पास से कुव्वत का ताज, इख्तियार का ताज, बरकत का ताज, फजल का ताज, खुदा की बख्शिश का ताज छीन लिया और शमसून एक सिंपल आम आदमी से भी नीचे गिर गया और इसका ताज उससे छिन गया। शायद वो याद करता हो वो कुव्वत के ज़माने, वो इख्तियार के ज़माने, जब इसने लोमड़ियों को पकड़ा होगा और उनको आग के लिए इस्तेमाल किया। वो याद करता हो कैसे उसने एक बहुत बड़ा गेट अपने हाथों से उठा लिया, कैसे 30 आदमियों को मारा, कैसे 1000 आदमियों को मारा। वो खुदा के अजीम काम याद करता होगा और उसे याद आता होगा कि मेरे पास कभी इख्तियार था, मेरा एक नाम था, अपनी कौम मेरी इज़्ज़त करती थी, अपने लोग मुझसे प्यार करते थे, गैर कौमें खौफ खाती थी। आज कौन खौफ खाएगा? तो याद रखिए कि अगर शमसून इस आजमाइश पर गालिब आता तो कोई उसका ताज ना छीन लेता। तो याद रखिए, फिलदिल्फिया की कलीसिया को यीशु मसीह ने कहा कि तू आज तो कायम है, बरकरार है, सलामत है, पाकीज़गी, रास्तबाजी, इज़्ज़त, वकार, म्यार का ताज तेरे पास रखा हुआ है। हालांकि ये कोई ज़ाहरी ताज नहीं था, लेकिन ये ताज बरकरार रखने के लिए तुझे गालिबाना कोई तरह ताज ना छीन ले। तो नाज़रीन, यही बात मेरे और आपके लिए हकीकत रखती है। आज मेरे और आपके दाएं बाएं बेशुमार लोग ऐसे होंगे जो मेरा और आपका ताज छीनने के लिए कोशिश होंगे। इब्लीस कभी सोता नहीं है, वो फाड़ खाने वाले शेर बब्बर की मां दिन रात धाड़ता फिरता है, किसी को चीर फाड़ खाए। और किन को? जो वही लोग जो कायम हैं, जो साबित कदम है, जो इस्तिकलाल के साथ चल रहे हैं, उनका ताज छीनने के लिए वो कभी भी जो है आराम से सोता नहीं है, बल्कि वो जागता फिरता है। इसलिए आइए बेदार रहिए, और जो पैगाम फिलदिल्फिया के कलीसिया के लिए वो मेरे और आपके लिए भी है कि हम जागते रहें ताकि कोई हमारा ताज ना छीन ले। खुदा इस कलाम के सबब से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन।